Hi guys, welcome to MH Law CT 5 years 2021 30 days strategy video. Many of you have demanded for this video और 3 years के बाद तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ गई कि सर जल्दी से वीडियो को पोस्ट करो. So finally we are here and we will understand complete information regarding the MH Law CT 5 years. Okay, so first of all nothing but the phase wise preparation, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 and phase 5. ठीक है ना. So phase wise preparation, after then section wise preparation will talk speed breaker which we are as of now facing regarding boosting our score and all, and obviously after then must do and a short question which you can expect in the exam so that we can prepare well and finally get GLC Mumbai or ILS Pune College. So this is what the rough overview I have given you regarding this video. So let's start the video. Okay, so phase 1, phase 2, phase 3, it is very important, very mandatory. So ये अपने को करना ही करना है. So in phase 1 you have to watch the videos whichever coaching you have joined, live classes या तो फिर recorded videos है. You should watch those videos, learn the concept, fundamentals, also recording of the live class and this section wise workout. For example, you are good in logic but you are weak in English or let's say in GK. So you have to work on those section very well. That is the phase 1. Phase 2 is nothing but practicing part which is very important when it's come logic, when it's come maths, English, learning the tricks. Okay, so books and the e-books, whatever you people have, books है, e-books है, उससे practice कर लो. 30 question minimum you need to practice. This is what the minimum question, but in your maneuver book there are 50 question given for the practice purpose. So if you have more time तो पूरे 50 question practice कर लो. For maths only, just first 15 to 20 question only for the maths, because maths का weightage कम है एंड बहुत सारे स्टूडेंट तो छोड़ ही देते हैं मैथ्स. सर मैथ्स कैसे कर 10 क्वेश्चन आने वाला क्यों करने का. सो डोंट डू दैट. यू नीड टू solve all the questions from the maths. So phase 2 is nothing but your practice part. After then, once you're done with your books, then there is a handouts given on your portal. If you are manual live class students or online program you have joined, or else whatever material you people have, practice उसको अच्छे से कर लो. Third is nothing but the performance part, which will be defined by your test score. Topic test, section test and full length test. By topic test you will be enhancing your topic very well. After then section wise workout, section में सारे topic included होते हैं. After then full length mock test. But if you are starting your preparation now onwards, तो फिर 1 से 2 mock लिख करके फिर start करो आपकी preparation तो ज़्यादा better होगा. After writing 1 or 2 mock tests you will get to know what types of the questions coming up and what is the difficulty level of the question paper etc. तो phase 1, phase 2, phase 3 clear है. And also if you have done with your preparation तो mock पे stress ज़्यादा करो. After then comes your revision part. Continuous revision is very important. Phase 4 concept revision, any kind of formula अगर आपने कुछ याद किया होगा तो रूल्स को लेकर के, ट्रिक्स को लेकर के. आफ्टर देन स्पेशल वर्कआउट जहां पे स्कोर नहीं आता मैक्सिमम लोगों का, which is nothing but your GK. Also maximum people don't write the mock test, they don't analyze the mock test as per the requirement. So mock test लिखना है अच्छे से और उसके एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग, वीक, ओके, हिट, ये 4 सेक्शन में आपके सारे टॉपिक सेक्शन को लेकर के डिवाइड होने चाहिए. आफ्टर देन टाइम मैनेजमेंट. सर वो टाइम पूरा खत्म हो गया और पूरा क्वेश्चन उसमें से 10 क्वेश्चन छूट गए मेरे या तो 15 क्वेश्चन छूट गए. ये बहुत फ्रिक्वेंट आंसर आई गेट फ्रॉम द स्टूडेंट कि सर पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ और आधा पेपर छूट गया है, तो कुछ ना कुछ छूट गया है. तो सीटी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट गाइस. सीटी जो है वो स्पीड वाला एग्जाम है, तो वी नीड टू हैव अ गुड स्पीड बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेंटेन आवर एक्यूरेसी. जितने भी क्वेश्चन अटेंड करें वो राइट होने चाहिए. ऑल्दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग बट कोशिश करो कि क्वेश्चन आपके राइट हो. ओके, टू हैव अ गुड स्कोर. सो एक्यूरेसी वर्कआउट इज नथिंग बट योर फेज 5. तो ये सारे आपके स्पेशल वर्कआउट है. रिवीजन पार्ट फेज 4. आफ्टर देन फेज 3, फेज 2 एंड फेज 1 तो आपका डायनामिक मैनर में ही जाए. ये एरिया पे आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना है. ये हो गया प्रिपरेशन का पार्ट, कैसे प्रिपरेशन को चैनलाइज करना है. नाउ मैक्सिमम पीपल आस्क मी सर कितने घंटे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेटेज क्या है, तो वो मैं अभी सेक्शन वाइज वर्कआउट में बताने वाला हूँ. सो इन योर सेक्शन वाइज वर्कआउट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिक, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको आने वाले. ट्रस्ट में 5 इयर्स के लॉजिक में जो अरेंजमेंट वाला पार्ट है सिर्फ वही एक एडवांस लेवल पे आता है, बाकी सब इजी होता है, मतलब एकदम चिंदी लेवल का क्वेश्चन. सो ट्रेडिशनल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, ये 3 टाइप्स के लॉजिक आएंगे आपको एग्जाम में. एंड इसके अंदर मस्ट डू टॉपिक मैंने थोड़ी रिसर्च की है तो वो भी आपको वापस से बता देता हूँ. ऑलरेडी आई हैव मेड द वीडियो ऑन द सेम. सो इसके अंदर आपको क्या क्या फॉर श्योर मतलब हर साल एग्जाम में आता ही आता है वो कंप्लीटली करना है लॉजिक के अंदर. पहला है, लिख लो, अगर मैं मेरी हैंडराइटिंग नहीं दिख रही है तो ब्लड रिलेशन.
ठीक है, ब्लड रिलेशन, उसके बाद है आपका सिलॉग, सिलॉइज्म जिसको बोलते हैं अपन, उसके बाद है इन इक्वालिटी, आफ्टर देन अरेंजमेंट एंड पजल। इसको अच्छे से करके जाना, 20 से 22 क्वेश्चन, आई रिपीट 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं अरेंजमेंट एंड पजल वाले एरिया से, तो ये अपने को अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड रैंकिंग डायरेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग के 1 से 2 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, लाइक अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन या तो फिर कंक्लूजन, ये 3 में से कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका लॉजिक वाला पार्ट है। अगर 2 घंटा डेली बेसिस पे लॉजिक को दे रहे हो तो काफी डिसेंट आ रहा है। हम ये इतने टॉपिक तो अच्छे से करने ही है, ऑल्दो देयर इज अदर टॉपिक ऑल्सो, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट टेस्ट, इनपुट आउटपुट हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, ये आ सकते हैं, बट ये जो टॉपिक है ये फ्रिक्वेंटली हर साल एग्जाम में आ ही रहा है, तो ये अपने को अच्छे से कंप्लीट करना है लॉजिक वाला पार्ट। ये मस्ट डू मैंने लिखा है ना, शॉर्ट शॉर्ट, मतलब ये क्वेश्चन आएंगे ही, मतलब पक्का आएंगे एग्जाम में, आने ही वाले हैं। मैथ्स में 10 क्वेश्चन आएगा, आधी जनता तो मैथ्स छोड़ ही देती है, यार मैथ्स इतना टफ है सर, 10 मार्क्स आने वाला है, छोड़ देते हैं ना। हाँ, तो जितने लोग मैथ्स छोड़ने वाले हो आपका जीएलसी नहीं होने वाला, आई रिपीट, जितने लोग मैथ्स छोड़ने वाले हो, जीएलसी आईएलएस जाना है ना, 110 120 लाना है ना, तो मैथ्स को नहीं छोड़ना। मैं बता रहा हूँ ना क्या करना है, आई एम हियर। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक के टॉपिक भर भर के आपको आने वाले। कौन कौन से टॉपिक लिखो, हर साल 3 क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से आता है। परसेंटेज में केसलेट टाइप होते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन अगर सॉल्व किया तो उसके ऊपर भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक साल एक सॉल्व हो गया तो उसके ऊपर 3 क्वेश्चन, तो परसेंटेज से 3 क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं। 19 और 20 दोनों का मेरा एनालिसिस का वीडियो देख लो। आफ्टर देन प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, SINCI, टाइम स्पीड डिस्टेंस TSD, टाइम एंड वर्क, और एक टॉपिक थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये सारे वीडियोस आपके पोर्टल पे भी है, इफ यू हैव अ पोर्टल एक्सेस, ये सारे वीडियोस को देख लो, यहां से ही आपके 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अपने को 10 में से अगर 8 भी मिलता है तो बहुत अच्छा है, राइट, बट इट जस्ट दैट कि यहाँ पे टाइम लगने वाला है, तो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ, और एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम देके चलो। इस 30 सेकंड 40 सेकंड में मुश्किल है, अनलेस यू आर प्रो इन मैथ्स। ओके, सो मैथ्स के लिए 1 आवर इज मोर देन सफिशिएंट, डेली 1 आवर 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक टॉपिक पढ़ो, आराम से हो जाएगा। इफ यू आर टेकिंग मोर देन 1 डे, मतलब 2 दिन में एक टॉपिक करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिला करके 8 से 10 टॉपिक होंगे यार, कंप्लीट करो ना, क्यों छोड़ना। सो इसको लेके टॉपिक टेस्ट अच्छे से लिख लेना। आपकी जो मैन्युअल की बुक है उसके अंदर 50 क्वेश्चन दिए है, मैंने फिर से बोल देता हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन बहुत हो गया, उससे तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है मैथ्स को लेके, बट बाकी के टॉप सेक्शन को लेके लॉजिक, इंग्लिश, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इंग्लिश में आरसी, वोकैब एंड ग्रामर। अब आरसी 10 to 15 के बीच में रैम्बल करेगा, इतने मार्क्स के लिए आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत आसान होता है, छोटे छोटे पैसेज होते हैं यार, तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आफ्टर देन वोकैब के अंदर आपका फिल इन द ब्लैंक, सिंगल लाइन, डबल लाइन, एंड इंग्लिश को लेके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बेसिक क्वेश्चंस, तो ये आपका वोकैब वाला पार्ट हो गया। अभी वोकैब पे कुछ काम नहीं कर सकते, 1 मंथ में वोकैब पे काम नहीं होगा गाइस। तो वोकैब के लिए ओनली न्यूज़पेपर रीडिंग यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। 1 घंटा मॉर्निंग में चाय के साथ ब्रेकफास्ट अभी करने बैठते हो, डेली का 1 आवर न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट। उसमें भी क्या पढ़ना है, पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा एंड एडिटोरियल पेज, मस्ट है यार, लॉयर बनने जा रहे हो, ये नहीं किया ना तो फिर तब क्या बोलूँ मैं, ये करना ही अपने को विदाउट फेल। ओके, सो पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज, द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लेना, डिपेंडिंग ऑन योर इंग्लिश। इंग्लिश बिलो एवरेज है तो फिर इंडियन एक्सप्रेस से चालू करो, और अबव एवरेज है तो द हिंदू से चालू करो। ग्रामर के लिए ऑन योर मैन्युअल पोर्टल देयर आर 100+ रूल्स आर गिवन रिगार्डिंग द ग्रामर, ये रूल्स को गो थ्रू करो एंड वॉच ऑल द ग्रामर रूल वीडियोस। उसमें से ही आपके सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके ग्रामर को लेकर के। तो इंग्लिश के लिए इतना वर्कआउट अपने को करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिक को लेकर मैंने एक चीज और ऐड करनी है, 2 पजल डेली बेसिस पे सॉल्व करना है, और यहाँ पे इंग्लिश में 2 आरसी डेली बेसिस पे अपने को सॉल्व करना है। ये मस्ट डू वर्क है, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है सीटी में तो ये सब करना, आराम से काम होगा अपना। तो इंग्लिश में आरसी, पैराग्राफ जंबल, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज वाले क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन आपको, ये 5 टाइप है जो हर साल रिपीट होता है एग्जाम में बेसिकली। लीगल में यार फैक्ट और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर जो मेनली जो टॉपिक करना, जो कि ट्रेडिशनल टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है आपका,
टॉर्च को लेकर के है। तो ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है, इट्स इनफैक्ट वो इजी होता है, जस्ट दैट कि डेटा काफी बड़ा बड़ा होता है। यू हैव टू रीड, आफ्टर देन यू हैव टू रीड 4 ऑप्शंस एंड देन मार्क द आंसर। तो रीडिंग में टाइम जाने वाला है, यहाँ पे आपका जो टाइम जाएगा रीडिंग में जाने वाला है। सो लीगल के लिए 1 आवर दे रहे हो अगर डेली बेसिस पे प्रिपरेशन को लेके मॉक एनालिसिस कर रहे हो तो सफिशिएंट है। एंड इंग्लिश को लेके 1.5 आवर, और ये 1.5 आवर आपका 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग को छोड़ के है। तो सारे टॉपिक को आपको अच्छे से ट्रिक समझना है। इंग्लिश इज मोर अबाउट ट्रिक्स। जितने लोग का स्कोर इंग्लिश में नहीं है, दोज हु बिलोंग टू वर्नाकुलर मीडियम, उनके लिए रामबाण यही है कि सारे ग्रामर्स के रूल रट लो, ट्रिक्स टू हैंडल द रीडिंग कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस, इस पे वो काम कर लो। वोकैब पे अभी काम करके कुछ होने वाला नहीं है। फिलअप वाले क्वेश्चन, पैराग्राफ जंबल वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक भी इन्वॉल्व होता है। ये सारे टाइप के क्वेश्चन पे काम करो, आपका स्कोर बढ़ेगा। एंड लास्टली जीके, 30 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। अगस्त 2020 से लेकर के अगस्त 2021, 1 ईयर का जीके अपने को कंप्लीट करना है विदाउट फेल। लोग बोलते होंगे यार 3 महीना कर ले, 6 महीना कर ले, नो डाउट करना चाहिए, बट जो 1 साल का जीके करेगा वो सेफर साइड होगा। कुछ भी पूछ ले 1 साल के अंदर अपन फोड़ के रख देंगे। अभी इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से करने, स्टैटिक जीके। सो फॉर करंट अफेयर्स ऑन योर पोर्टल मंथली पीडीएफ्स आर गिवन। अभी मैं एडवाइस नहीं करूंगा पीडीएफ करने के लिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा जो 2000 प्लस क्वेश्चन है वो कंप्लीट करो आपके पोर्टल पे। देयर इज अ जीके बूस्टर फॉर द करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स को लेकर के जो 1 साल का पूरा वीडियो है, सिर्फ वीडियो देख लो अगस्त 2020 से लेके टिल 2021। करंट अफेयर्स के लिए इतना काम करना, अगर पूरे साल जीके नहीं पढ़ा है इतना कर लेना तो अपना मार्क्स कहीं अच्छा आ जाएगा। स्टैटिक जीके को लेके अगेन 1000 प्लस क्वेश्चन का बूस्टर है, उसको गो थ्रू करो। 2 टाइम्स करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 टाइम्स गो थ्रू करना है। एंड इन स्टैटिक जीके देयर आर द अदर पीडीएफ्स आल्सो गिवन रिगार्डिंग योर कंट्री, कैपिटल, स्पोर्ट्स को लेकर के, एंड रिवर, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट एंड डेज को लेकर के। तो ये सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे स्टैटिक में। जीके इज लाइक अ सी, तो 30 में से अगर अपना 20 टच कर रहा है मतलब वी आर द गॉड ऑफ दिस एरिया, है ना। अगर 20 के ऊपर 25 भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट जीके में कुछ भी पूछते हैं। थोड़ा सा इकोनॉमिक सेक्शन भी देख लेना, कभी कभी लास्ट ईयर ऐसा किए थे कि इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन आ गया था, तो थोड़ा सा इस पे भी वर्कआउट करना है। और दिस इज व्हाट द कंप्लीट प्रिपरेशन चार्ट। स्पीड ब्रेकर एक बचा है, इसके बारे में अपन अभी बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टेक रिकैप कि क्या क्या कंप्लीट करना है अपने को। सबसे पहले फेज 1, फेज 2, फेज 3, लर्न, प्रैक्टिस एंड देन परफॉर्म टेस्ट को लेकर के। सो वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं, बुक से प्रैक्टिस एंड ऑब्वियसली टेस्ट पार्ट। दिस इज व्हाट द फेज 1, फेज 2, फेज 3। रिविजन पे कंटिन्यूअस काम करना है विदाउट फेल। स्पेशल वर्कआउट, इसके लिए तो 1 घंटा अलग से निकाल लो डेली का, बहुत सही आपका प्रिपरेशन जाएगा। आफ्टर देन सेक्शन वाइज वर्कआउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अबाउट लॉजिक, मैथ्स, इंग्लिश, लीगल एंड जीके को लेके क्या क्या काम कंप्लीट करना है। Alright, to join for the online program, mock test, books, sectional course, full course program, just open Google and type maneuveredu.com. Okay, this is what the website is. Click on the home page, buy online, law entrance. Here you will get full course, books, sectional course, mock test. Likewise, any of the combo courses if you want, that combo course. Full course में जाकर के MH Law City 5 years program you can join. Because if you will go back, you can order the books for the practice purpose. आपके घर पे कुरियर हो जाएगी within 7 days. अगर आप नियर बाई मुंबई हो तो जल्दी हो जाएगी। मॉक टेस्ट, ये आपका मॉक टेस्ट हो गया 5 years को लेके। एंड द सेम वे आपका सेक्शनल कोर्स, कोई सेक्शन वीक है। एज आई टॉक अबाउट द जीके, तो ये आपका जीके का प्रोग्राम है। वीडियो लेक्चर्स एंड बूस्टर्स, हैंडआउट, सब कुछ इसके अंदर है। ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट दी स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर क्या क्या अभी हो रहा है, इंग्लिश का स्कोर नहीं आ रहा है। ये बहुत से लोगों का कमेंट भी आ रहा है, कॉल भी आ रहा है इसको लेके कि इंग्लिश में सर स्कोर मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। सो जिसके भी इंग्लिश बिलो एवरेज है, एज आई मेंशन, आपको 2 आवर से डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं। न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली रीड करना है 1 आवर अलॉन्ग विथ योर ब्रेकफास्ट। एंड ग्रामर के सारे रूल्स 2 बार करके ना एकदम घोल के पी जाओ। सो एंड ट्रिक्स टू हैंडल दी आरसी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वाले भी होते हैं जो इमीडिएटली आपको पैसे से ही मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इन्फ्रेंस टाइप के होंगे, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि यार ए भी है बी भी है, कौन सा मार्क करूं। सो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, नो डाउट, बट देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो, तो वो तो राइट करो एंड ट्राई टू लर्न कि इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन कैसे डील कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए तो अभी यही ऑप्शन है। अगर ये बोलोगे सर 1 महीने में मैं कैसे इंग्लिश में वर्कआउट करूँ, कैसे परफॉर्म करूँ, इंप्रूव कैसे करूँ, तो अभी के लिए जो मैंने बताया यही ऑप्शन है।
वर्बल एबिलिटी इज समथिंग डैम डिफिकल्ट टू इम्प्रूव, मतलब 6 महीना करोगे तो रियलाइज होगा ओके अभी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव हुई है, ऐसा इंग्लिश। सो वो 1 महीना में इंग्लिश सीखे वो है ना, वो सब जुमलेबाजी है तो वो नहीं करना। ओके सो एंड नेक्स्ट इज फॉर जीके। जीके को लेके आपके पोर्टल पे सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस एंड स्टैटिक के पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, मैं जीके बूस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो कंप्लीट कर लो। इतना आपको जीके पे काम करना है, फिर भी सफिशिएंट नहीं है। इन एडिशन टू दैट अगर आपको और भी कुछ रिसोर्स मिल रहा है तो उसको फॉलो करो। मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। सो मॉक टेस्ट लिखो, मॉक टेस्ट से आपको टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग वीक एरिया उसको डिफाइन करो, स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो, आपका टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, सारे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। एक और मॉक टेस्ट को लेकर टिप्स दे रहा हूं मैं, इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और भी कोई ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना, आई विल मेक वीडियो ऑन द सेम। बट अभी मॉक वाला स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ 2 मिनट में। 150 क्वेश्चन, 120 मिनट का टाइम है। व्हाट यू हैव टू डू, टेक 5 to 10 मिनट्स का टाइम, क्लिक किया पेपर चालू हो गया, 5 से 10 मिनट, लेट से 10 मिनट का टाइम ले लिया, 150 क्वेश्चन को टॉगल थ्रू करना है फटाफट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पूरे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना है। एंड व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस, उसमें से कुछ क्वेश्चन इतने इजी होंगे जो कि देखते ही 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, उसको सॉल्व कर लो। आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 15 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी वाले थे, आपने उसी समय सॉल्व कर लिया। ट्राई करना इसको, 10 मिनट का टाइम ले लो। अगर ये टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो चॉइस इज योर्स, बट 10 मिनट का टाइम मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है फटाफट क्वेश्चन को गो थ्रू करने के लिए। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेक कर रहा हूँ, और जो बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चन है वो देखते ही आपको फटाक से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से ये लर्निंग वाले फेज पे काम किया हुआ है तो। आफ्टर 10 मिनट्स वंस यू डन विद ऑल दी क्वेश्चंस, ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि पेपर टफ है कि इजी है। पॉइंट नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन दी पेपर। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इजी वाले कौन से हैं, मॉडरेट एंड टफ वाले कौन से। सो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द सेक्शन, सबसे पहले आप इजी वाले क्वेश्चन पे जंप करोगे, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट, दिस शुड बी द ऑर्डर। एंड आप सारे क्वेश्चन को एक बार रीड कर चुके हो तो इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, वो क्वेश्चन याद रह जाएगा आपको, और जब आप वो क्वेश्चन को वापस सॉल्व करने जाओगे, आधा क्वेश्चन आपने मेंटली सॉल्व कर दिया है तो वहां पे टाइम कम लगेगा। ट्राई करना, ये मैंने एक टिप्स दिया हुआ है, इसको लेके स्ट्रैटेजी वीडियो एक अलग से आई डेफिनेटली ब्रिंग मॉक टेस्ट को लेकर के। तो मॉक टेस्ट तो आपके पोर्टल पे मेन्यूअर के 10 फुल लेंथ है और सेक्शनल भी है, कंप्लीट कर लो यार, मॉक टेस्ट तो लिखना कंपलसरी है। हाँ, मॉक टेस्ट स्कोर का जो ट्रैकिंग है उस पर वर्कआउट करना, फर्स्ट ट्राई कि मेरा 80 टच हो रहा है क्या, अगर 80 टच नहीं हो रहा तो मतलब अपन अभी स्टेज 1 भी क्लियर नहीं किए। दिस इज व्हाट माय स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। सो 80 आ गया तो अपन ने स्टेज 1 डन, फिर ट्राई फॉर द 90 आया, डन। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग होता है जब 100 के ऊपर जाते हैं, तो 100 टच हो गया तो मतलब अपन लेवल 3 क्रॉस कर लिए। इट इज डैम डिफिकल्ट टू इनहैंस स्कोर, बहुत सारे लोग का 100 के आसपास घूम रहे होंगे, तो 100 के ऊपर मार्क्स इनहैंस करना इट इज डिफिकल्ट। तो जितने लोग का 100 और 110 आ रहा है, अगर कोई ऐसे है कि मेरा यहाँ सर इससे ज़्यादा मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है तो ये मुझे ये भी बता देना, तो मैं स्ट्रेटजी में ऐड कर दूंगा कि कैसे मार्क्स यहाँ से 120 पे कैसे लेके जाते हैं। I'll tell you about this also. Alright, so this is what the speed breaker workout what you have to do. 30 days strategy. This is roughly 30 days बचा हुआ है, 16 सितंबर का एग्जाम डेट टेंटली दिया हुआ है बाय सिटी सेल, तो 30 डेज का प्लानिंग लेके चलो। अपने को स्माइल फेस के साथ आना है, जीएलसी आईएलएस और जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, आइडियल टारगेट तो जीएलसी और आईएलएस ही होता है लोगों का। एंड डू वॉच द लास्ट ईयर पॉडकास्ट ऑल्सो, बहुत सारे पॉडकास्ट, उससे भी आपको काफी सीखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट को लेके, ऑनलाइन प्रोग्राम्स को लेकर के, एंड बुक्स एंड सेक्शनल कोर्स, कोई आपका मैथ्स लॉजिक जीके को लेकर के अगर सेक्शनल कोर्स इफ यू वांट टू ज्वाइन, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। For any query and doubt, you can again write in the comment box. And obviously more videos will be keep on coming up regarding 2021, 22 and 23 MH Law CET exams. Prepare well. All the very best. Thank you.